मेरी 336 स्लाइड हैं। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड इवनिंग। I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle. Today we have a webinar on tax audit under section 44AB and 44AD, and on this subject our former Central Council member CA Sanjay Agrawal ji with us. I don't think there is any need to introduce him. He is a very known and popular among us the member of Chartered Accountants, but still I would like to say something that he was the chairman of Northern India Regional Council during 2004 and 5. He was the Central Council member of ICI from 2009 to 2019. He headed the almost all the committee of the ICI as a chairman and vice chairman. He introduced the e-Sahayata in ICI. By using this e-Sahayata, lakhs of members benefited and resolved their issues. He also was the member of disciplinary committee for 5 years, and during this year, he solved so many cases which were pending long. And one more thing I would like to say about him: he is always available by 24/7 for the benefit of the member. You may call him at any time, you may approach him, and he is always ready to solve the problem. And last but not the least, when we conceived the idea to formulate to this study circle, he was the chairman, and within a day he gave the permission, and I went to him to receive the certificate of this study circle. So once again I welcome Sir Sanjay Agrawal ji, all the panelists and attendee. And with this, over to Sanjay Agrawal ji. थैंक यू राजेश भाई, राधे राधे। Welcome sir. राधे राधे सर। और आपके मार्मिक जो दिल को छू गए शब्द सर और सर पुरानी यादों को आपने ताज़ा कर दिया। और सर मैं एक जो 24/7 आपने कही, जी सर। मैं उसमें एक कहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि शायद उस पर मैं खरा उतरूँ। अगर कभी किसी मेंबर को ट्राई करना है तो वो कर भी सकता है। मेरा एक टैगलाइन है, इफ यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू स्लीप and you think that by talking to me you can sleep, don't think that I'm sleeping. So this is something I have kept it for last 15-16 years. And so far as whatever you have said, I am nothing. I am, because of only you people, today I am here. And I pray from the God that the God should give me strength to come to your expectations, all of your expectations. And the topic today, let me tell you, I'm sharing my PPT. Is it on your screen? Can anybody say? आप लोगों की स्क्रीन पे है PPT मेरी? हेलो? यस सर, स्क्रीन पर है सर। ओके ओके। तो जो है वो मैं सिर्फ 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि PPT मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है that it should cover A to Z, and entire law which is there should also be incorporated. Whatever important case laws are there, those are also incorporated here, and there may be some changes which may come in utility in coming days. But as on today, the utility which I have taken out is there is no change in 2019 and 20 also. So I am presuming since schema and utility for assessment year 2021 is same, except for one announcement for which also there is no change in the utility about two clauses, one of GST and the another of GAR. So those have been further extended, and now they will be applicable from 31st March 21. As on
31st March 20, these clauses are not applicable, and as such, we are not to be worried. But let us see this particular utility which they have started in respect of GAR and in respect of GST, because we are already in this financial year, April, May, June, and July, and August, we are in mid of August. 5 months we are already here. Now tomorrow, if on 31st March 21, if we have to fill up those data, I am telling you it is going to be a very difficult task. So please ask all software provider to incorporate in their financial accounts as well as in their utilities to incorporate those changes which are being deferred again and again, and they are being in the process, so that when changes comes, at that time we are not taken by surprise. I have uh, made me very small, and in case you have anything, please just unmute someone and who can talk to me. Uh, so you people are not visible to me now. Uh, the most controversial point which affects directly to the chartered accountant fraternity, which was pronounced in this budget and was made applicable for assessment year 2021 in respect of audit of accounts under section 44EB. And I have been told that they are getting certain mails from the department to confirm certain information, so that the government can now estimate with this amendment how many tax audits will be there in the financial year 1920. So they wanted to know this information, whatever I could understand. Now, there may be some thought process while interpreting this particular amendment. As on today, though, I think that my alma mater, the Institute of Chartered Accountant, either they themselves should clarify the situation to the members, or they should ask the board to clarify the confusions and various school of thoughts among various speakers. So, without knowing that what my fellow colleagues or my other people are thinking or talking, what I wanted to dissect this particular section before I move into the interior of the taxonomy. I would like that instead of taking every slide and finishing the time of deliberation, I would like to take, after 5-10 clauses, the question answers. And please post your question answers. If it is possible for me, while deliberating, I'll stop after 5-10 clauses and you can ask those questions, and I will ask Rajesh Bhai or the conveners to whom I have forgotten to acknowledge, and that they should unmute them one by one if their queries are there. So I need your attention. So first sure, of all, sure, boss, sure. Thank you, boss. 44AB, subclause A,
there is a proviso which has been added in this. Earlier, there were confusion that what the people, those who are up to 2 crore of turnover, they are supposed to get their accounts audited if they are not getting their 44 AD. So that has been answered by them. Now this also requires an answer. ये भी एक clarification चाहिए. मैं exact provision screen पे आपकी carrying on business shall if its total sales turnover or gross receipt. मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा समय लूँगा क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को अपनी तरफ से पूरी तरीके से अगर डेलिब्रेट कर पाया तो शायद आज आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का पर्पस हो जाए. कैरिंग ऑन बिजनेस शेल if its total sales, पहला वर्ड है sales, turnover or gross receipt as the case may be. In business, exceed 1 crore rupees in any previous year. तो tax audit trigger करेगी the moment these three things as the case may be qualify होती. फिर उसके बाद उसके exceptions वेरियस प्रोवाइजो और सबसेक्शन से. तो 3 लफ्जों का इस्तेमाल टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एंड नहीं है. ये तीनों वर्ड जो हैं एज द केस में भी के साथ है. नाउ आई वांट टू से दैट माय अल्मा मैटर have dealt with this issue. What is the meaning of total sales? What is the meaning of turnover? Or what is the meaning of gross receipt in their tax guidance note under section 44AB since 1984-85. And various case laws have been given for determining which item will be counted in turnover and which item will not be counted in all these three things. So I need to refer my tax audit guidance note. Now let me take you further. What is the amendment which has been brought by the Finance Act 2020? Now what is the proviso? Proviso says that in case of a person whose aggregate of all amount received, it is a inclusive proviso, including amount received for sales, turnover, gross receipt. यहाँ तक तो ये पहले भी था during the previous year. Now I will stop here. Now if I am in a cash system of accounting or in a mercantile system of accounting, this particular proviso is to be interpreted. Then what is next? In cash, it means any of these amounts which has been said here, sales, turnover or gross receipt. This is not an exclusive definition. What they say, aggregate of all amount received. Now what does this aggregate of all amount mean? Is this mean that they can travel, this amount can travel beyond my sales, turnover or gross receipt? Yes, the answer is being given in the form. Now what they say, all these aggregates, if we make it together, it should not exceed
in cash. If I am making the cash payment which is less than 5%, if I aggregate all these amounts, in that case, the proviso will be now in place, or will be, you can say, can be invoked. Now, the third step. Third step is says, and this is not an or clause, it is an and clause. Aggregate of all payment made. It doesn't talk about only expenditure. Aggregate of all payment made, including amount incurred for expenditure in cash during the previous year, does not exceed 5% of the said amount. So, the first step, I must have a turnover of more than 1 crore. Second step, that all the aggregate amount which receive, including the sales turnover in that particular year, should not be more than 5% in cash. And also, the payment should also not be more than 5%. If suppose in one case I exceed 1 crore, but the cash from all these amounts which are referred in subclause A of the proviso exceed 5% of cash, whether in next, even if I have not made any payment in cash, the clause will not be applicable. ये क्लॉज नहीं लगेगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करनी है। और तीसरी कंडीशन जो है वो प्रोवाइजो की, वो ये कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ का अमाउंट 5 करोड़ रुपए से आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा अगर आप ये दोनों कंडीशन अपनी। तो ये जो है, अब इसको मैं आपको फॉर्म की तरफ लेके जाता हूं जो कि नोटिफाइड हुए हैं 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर फॉर्म। अब सब ये बात मैं ठीक कहता हूं कि फॉर्म्स जो हैं, रूल्स जो हैं, वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं कानून। तो मैं आपको दोबारा वहां पे लेके जाऊंगा, क्या कानून कहता है और क्या मेरा फॉर्म। ये मेरे से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इफ द आंसर of this clause is no, then you should tick whether during the year total sales turnover gross receipt of business exceed 1 crore but does not exceed 5 crore, yes or no। तो सबसे पहला क्वेश्चन, according to the system of accounting maintained by the assessee, I need to calculate whether his turnover is between 1 crore and 5 crore। यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूंगा, इसका रिसीट और पेमेंट से क्लॉज ए टू आई का कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ मेथड ऑफ अकाउंटिंग और मेरे 44 AB के मैनुअल जो मैंने टैक्स ऑडिट का इश्यू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उसको ध्यान रख के आपको हमको कैलकुलेट करना है क्या टर्नओवर 1 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है या नहीं है। अगर है, ये असेसी को फिल आउट करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिल आउट नहीं करना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए लोगों ने कहा साहब हमको ये सब कुछ कैलकुलेट करना है, तो फिर हम टैक्स ऑडिट ही कर देंगे। तो ये अब आपको कॉल लेनी है। मैं इसको नेक्स्ट क्लॉज में A2II को फर्दर पढ़ता हूं। पहले मैंने पढ़ा था कानून क्या कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, अब मैं पढ़ रहा हूं मेरा फॉर्म। इफ यस इज सेलेक्टेड, इट मींस
I am between 1 and 5 crore. Were aggregate of amounts received. अब ये टोटल टर्नओवर से आपके अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर निकल के रिसीव्ड के ऊपर कंसंट्रेट करता है। ये रिसीव्ड को ये कहता है कि अगर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, टर्नओवर, क्रॉस रिसीट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, रिलेटेड है, कैश है। ये किसी का अनम्यूट है, आई विल बी ग्रेटफुल अगर वो म्यूट कर दे। एनी ऑफ द पैनलिस्ट इफ ही इज अनम्यूटेड काइंडली म्यूटेड। सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट तक सीमित नहीं है। ये क्या कहता है? ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर on capital account such as capital contribution, loans during the previous year in cash does not exceed 5% of the amount, yes or no. If it is yes, then I have to go to A2 triple I. वहां पे भी यही कहता है, if yes is selected at 2I, whether the aggregate of all payment made including amount incurred for expenditure on capital account such as asset acquisition, repayment of loan, etc. during the previous year in cash does not exceed 5% of the payment, yes or no. If all the three clauses are in yes, then in B I have to say I am not liable for tax audit. If any of this clause there is no, then I am liable for tax audit. ये तो कहेंगे संजय जी आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। अब मैं आपको नटशेल में एक एग्जांपल देता हूँ। 3 स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करने। पहला स्टेप, मेरी अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से उस साल के मेरे P&L के अंदर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे है, तो मेरे को बाकी के 2 टेस्ट ले। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरी 4.5 करोड़ मेरी टर्नओवर है। यस, इट मींस A2I में मैं फॉल आउट करता हूँ। टर्नओवर एज पर P&L अकाउंट, sales as per P&L account, gross receipts of business, other sources, capital gain, ये कोई रिसीट नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना। इधर मैं 4.5 करोड़ की टर्नओवर करता हूं, तो मुझे सेकंड के लिए आना है। अब मान लीजिए मेरे पास पिछले साल की मेरी 50 लाख की रिसीट आ, सेल्स चेक्स, और 4.5 करोड़ की टर्नओवर में से मान लीजिए मेरे 3.5 करोड़ के मेरे डेटर आ गए, तो 3.5 वो और 50 लाख पिछले 4 करोड़ रुपए हो गए। अब अगर मान लीजिए मैंने 6 करोड़ रुपए का कोई लोन ले लिया या कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दी, तो ये 5% अमाउंट क्या 3.5 करोड़ पे होगा या 4 करोड़ पे होगा या वो 10 करोड़ पे होगा? तो सर, अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन एज वेल एज द फॉर्म, वो अमाउंट 10 करोड़ होगा। 3.5 करोड़ करंट ईयर के, 50 लाख पिछले साल के, और आपका 6 करोड़ का लोन। इन अमाउंट को जोड़ने के बाद सेकंड टेस्ट आपने ये करना है कि आपके पास इन सभी सोर्सेस से कैश कितना आया। अगर 5% से कम आया तो आपको नेक्स्ट क्लॉज पे जाना पड़ेगा और डिटरमाइन ये करेगा नेक्स्ट क्लॉज कि आपको ऑडिट करनी है। अब मैं आ जाता हूँ पेमेंट। अगर मान लीजिए मैंने इस साल
4 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ की पेमेंट करी, बाकी मेरे क्रेडिट। और मेरे पास जो 6 करोड़ का लोन आया उससे मैंने कोई पुराना लोन 5 करोड़ वापस, कुछ मेरे क्रेडिट हो, तो मैंने 5 करोड़ वो प्लस 1.5 करोड़ मेरे पास जो करंट ईयर की मैंने पेमेंट करी ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस पेमेंट, इन चीजों के लिए अगर मैंने पेमेंट, तो पिछले साल की मैंने मान लीजिए 50 लाख, तो 50 लाख, 1.5 करोड़ और 5 करोड़, 5 और 6, 6.5 और 50, 7 करोड़ रुपए की अमाउंट के ऊपर जो मैंने कैश में पेमेंट की है उसको 5% कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो 5% से कम है तो मुझे किसी तरीके की कोई टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, ऐसा ये कहता है। अब मैं यहाँ पे एक बार रुकूंगा और अगर कोई किसी तरीके का, मैं फुल व्यू लूंगा, कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो तो राजेश जी मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अगर चैट बॉक्स आप देखना चाहें तो। क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन है, आप ले लो सर, पढ़ लो या मैं पढ़ूं? एक मिनट, संजय जी, एक्चुअली मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मैं पढ़ पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैं सर। पूछ लूं राजेश भाई एक? हाँ जी पूछिए सर। संजय जी, ये जो ए और बी में जो आपने बताया रिसीड और पेमेंट वाला, हाँ जी ये दोनों को अलग अलग करके देखेंगे या दोनों को जोड़ के देखेंगे? देखिए सर, मैंने बताया पहला जो है वो रिसीट से रिलेटेड है, जी आपको स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई करना है। 5 करोड़ जब देखने हैं तो टर्नओवर देखनी है, और जब आपको रिसीट देखनी है तो आपको सेल्स और अमाउंट कैपिटल एक्सेट्रा को देखना है। जब इसको पार कर जाओगे, मान लीजिए आप यहीं पे खत्म हो गया, आपने 5% से ज्यादा कैश रिसीव कर लिया तो आपको खर्चे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फिर आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे, फिर हम आपके खर्चे, रीपेमेंट, ये चीजें एसेट एक्विजिशन पे जाएंगे, उनका अमाउंट करेंगे। तीनों अमाउंटों में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन आएगा कि लाइबल है या नहीं है। नहीं, अगर मेरा मेरा जो इशू है, मान लीजिए ये रिसीट और ये पेमेंट, इन दोनों को मिला के अगर मेरा 5% से क्रॉस कर जाता है, दोनों के अंदर मेरा 5% रहता है। देखिए ये इंडिपेंडेंट है, रिसीट 5% से ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो पेमेंट से कंफ्यूज नहीं करें। मान लीजिए रिसीट तो 3% है जी और पेमेंट जो है 6% है, जी। सॉरी 10% हो जाए ना, आप कहना ये चाह रहे हो। हाँ जी हाँ जी। पेमेंट पेमेंट 9% है और जी वो 3 है, तो जी। ये 10% से ऊपर हो गए तो 12% नहीं एप्लीकेबल होगा। नीचे वाला 5% से ऊपर हो गया इसलिए रिवोक हो गया, तो टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। ठीक। मैंने सर हम, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी। सर क्वेश्चन आंसर मैं ले रहा हूँ, लो 5 सर, 8 क्वेश्चन है। हाँ जी। चंद्रमोहन राणा जी पूछ रहे हैं, आईटी कंसल्टेंसी बाय ए फर्म इज बिजनेस और प्रोफेशन? देखिए सर, प्रोफेशन की डेफिनेशन जो है वो कानून में नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत सारे केस लॉ हैं जिसके हिसाब से आईटी प्रोफेशन को प्रोफेशन माना जा रहा है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत थिन डिफरेंस है, और मुझे जो है इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ नहीं मिले हैं, इसलिए मेरी ओपिनियन में आईटी प्रोफेशन को, क्योंकि अगर तो वो प्रोप्राइटरी में कर रहा है तब तो 100% अगर वो क्वालिफाइड है, और अगर वो कंपनी में कर रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंट टेस्ट, कि उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल कोई ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इंटरनेट सप्लाई कर रहा हूँ, खाली एक से लेता हूँ 2 को तो दे देता हूँ, तो ये बिजनेस माना जाएगा, फिर ये मेरे लिए। लेकिन मैं इंटरनेट की बैंडविड्थ लेता हूँ, उसके बाद और मैं उसको डिफरेंट पार्ट में करता हूँ, फिर मैं उसके साथ सर्विसेज भी देता हूँ कि आपका जो है इंटरनेट का यूज कम होगा, बहुत सारी चीजें, तो फिर ये बिजनेस की जगह प्रोफेशन होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राकेश कोचर जी पूछ रहे हैं, जी सर। एनएसएससी टर्नओवर इन 2018-19 इज 1,70,00,000। जी सर। ठीक है। ITR फाइल्ड अंडर सेक्शन 44 AD। हाँ जी। नेक्स्ट ईयर उसकी टर्नओवर है 2.2 करोड़। हाँ जी। टैक्स ऑडिट 44 AB कर दी। नहीं, ठीक है, 20-21 में अभी तो करनी है ना। 19-20 में, अभी आगे चलते हैं। हाँ जी। फिर टर्नओवर 20-21 में 1.8 करोड़। हाँ। असेसमेंट ईयर है सारे ये। 1.8 करोड़। कैन ही फाइल ITR अंडर सेक्शन 44 AD? दिस इज द क्वेश्चन। तो सर ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। हाँ, असेसमेंट ईयर 18-19 टर्नओवर है 1 पॉइंट कितनी है सर? 1.7 करोड़। 1.7 करोड़। तो आपने 44 AD ले लिया। जी जी जी। आपका AY 19-20 के अंदर आपका टर्नओवर हो गया मोर देन 2 करोड़, लेट अस से 2.2। 2.2 जी। तो आपने उसका 44 और AD एबी किया। में ऑडिट कर दी। ठीक है जी। हाँ अब आपका AY 2021 के अंदर फिर आपका 1.8 रह गया। जी। तो आप चाहते हैं कि 44 AD में आएगा या या नहीं नहीं? आएगा? देखिए जी सर, आप जो है अपनी स्वेच्छा से बाहर नहीं गए हैं। अगर आप जो है 2 करोड़ की टर्नओवर से नीचे आप अपनी ऑडिट कराते तो आप दोबारा नहीं जा सकते। आपकी टर्नओवर क्योंकि एक्सीड हो गई 2 करोड़ से, इसलिए आप जो है 44 AD के प्रोविजन से बाहर हो गए। अब आपकी टर्नओवर फिर से 2 करोड़ से नीचे है, तो आज की डेट में प्लेनली मैं ये कहता हूँ 44 AD इस्तेमाल कर अवेलेबल है। सकते हैं। आप नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन। वॉलंटरी नहीं गए हैं। अगर 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर होती तो आप फिर नहीं जा सकते हैं अगले 5 साल। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल गांधी जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सेक्शन 44 AB क्लॉज E फॉर डिसाइडिंग थ्रेशोल्ड वेयर थ्रेशोल्ड इज 2 करोड़? सर ये पिछली बार भी बहुत लोगों ने पूछा। वो थ्रेशोल्ड सिर्फ 44 AD के लिए है सर। उसके अंदर वो 44 AD के लिए वो बोलता है और ना कि 44 AB के लिए। सर ये आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप देखें तो ये जो है ये कहता है यहाँ पे 44 AD shall not be applied if it does not exceed 2 करोड़। तो सिर्फ 44 AD के लिए है सर। आप इसको ओवरऑल टर्नओवर से, इसका क्लैरिफिकेशन भी आया, इन्होंने सब कुछ अपना दिया, तो इससे प्लीज कंफ्यूज ना करें। राइट सर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश समकारिया जी पूछ रहे हैं, हाँ इन जी। लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2019-20 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA and 3CD, हाँ। one word in company name was written wrong. What is the solution now? अब वन कोई वर्ड सॉल्यूशन नहीं है। One word of the company's name was written wrong. आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जी। पैन नंबर ठीक है, पैन नंबर ठीक है, इसका मतलब और क्या है? आपने देखिए ये इनको मेरा नंबर दे देना, ऑफलाइन बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इफ जी। टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड प्रॉफिट इज अबव 8%, will assessee fall under 44 AB audit clause? No. सर 8% से ऊपर आपका प्रॉफिट है, आपकी चॉइस है। आप 2 करोड़ तक आप 44 AD में जाना चाहें, आप आ जाके आप टैक्स दे दीजिए 8% से ऊपर। हाँ 8% से कम हो गई तो वहां फिर एक कंट्रोवर्शियल इशू बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो मैं उस पर अभी डील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा जितने भी बड़े बड़े हमारे काउंसिल मेंबर जो अंदर हैं उन लोगों से आप रिक्वेस्ट करें कि इस मैटर को वंस फॉर ऑल आप लोग क्लैरिफाई करें। मैं तो बोल ही चुका हूं और आप लोग भी इस बात को बोलिए कि ये जो 44 AD में कंफ्यूजन है और जो अब ये आया, इन दोनों को आप क्लैरिफाई करो या बोर्ड से लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं,
जी इनका क्वेश्चन मोड़े को इनकम्प्लीट लग रहा है. 5% ऑफ चेक रिसीव्ड ओनली, बट इन माय व्यू इट इज इंक्लूडेड कैश आल्सो. नहीं, ये कह रहे हैं एक्चुअली सर, आपका 95% से ऊपर, लेट अस से 95.01 आपका चेक से होना चाहिए. 4 पॉइंट समथिंग 4.99 से ऊपर अगर आ गए, मतलब 5% तक आए, डज नॉट एक्सीड 5, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी. और जैसे ही 5.01 हुआ, वो आपको ऑडिट करानी. ऑडिट ले करा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मनीष जी का ही. सॉरी. Similarly, 5% be taken for cash and check payment or only for check payment. चलो ये तो हो ही गया, कवर्ड हो ये गया. दोनों चीजें, ठीक है जी. निशांत कुमार जी पूछ रहे हैं, if my turnover exceed rupees 1 crore, but हाँ. receipt and payment is below 5% of a specified amount, whether tax audit applicable? सर, स्पेसिफाइड अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है. अगली हाँ. मैंने बताया, उस साल की रिसीट या उस साल की पेमेंट खाली टर्नओवर या एक्सपेंडिचर की नहीं है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट को भी जोड़ के आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है. थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है. शायद इतनी सिंपलिसिटी और इतनी डिटेल में जो मैंने समझाया, आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. अगर फिर भी है तो आप ऑफलाइन एग्जाम्पल के साथ बात कर लेंगे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एट 442. संजय जी, ये दोनों क्लॉज में ही 5% से नीचे होना चाहिए ना एलिजिबल हाँ जी, होने के लिए. यस सर. अगर एक में 1% है, दूसरे में 6% है, तो आउट हो गए हम, हाँ जी, गए. क्योंकि वर्ड और नहीं है, एंड वर्ड यूज किया है जी इसमें. सर, यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग 5 crore लिमिट we have to look into turnover only, and for calculating 5% cash limit we will look into gross receipt, debtor, loan, turnover. Am I right? बिल्कुल ठीक है जी. आप ठीक है. फिर ध्यान से सुन लीजिए. मैंने यही कहा है कि पहला स्टेप आपकी टर्नओवर अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट है. दूसरा स्टेप आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिसीट और पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि सेल्स के अलावा बाकी चीजों को भी लेता है. तो इसलिए कृपया तीनों चीजें अलग अलग हैं. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम जैन जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ लॉस टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल? सर, लॉ से क्या लेना देना? लॉस से क्या है? टर्नओवर से है वो तो, हाँ जी, और रिसीट से. हाँ जी. चेतन शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर टर्नओवर इन असेसमेंट ईयर 18-19 70 लाख रिटर्न फाइल्ड. टर्नओवर इन 19, हाँ 18-19, 70 लाख. हाँ जी. टर्नओवर इन असेसमेंट ईयर 19-20 7 लाख 7 लाख. हाँ, फाइल्ड अंडर 44 AD. हाँ, टर्नओवर इन असेसमेंट ईयर 2021 80 लाख हाँ. 80 लाख. वेदर वी फाइल रिटर्न आफ्टर द टैक्स ऑडिट? अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप कर सकते हो. अगर 8% या 5-6% या जो भी है, एज द केस में भी अगर उतना प्रॉफिट देते तो 44 AD में रहे आप. और आपको अगर ये लगता है, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि आपने पिछली बार 44 AD ले लिया, आप चाहेंगे नॉर्मल में रहें, कोई भी ऑडिट न कराएं, ना 44 AD ने ना दे, तो सर मैं उस ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू में नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है. तो भाई साहब मत करो. अपना जो है 1-1.5% ले लेना, उनसे गारंटी ले लो ना, जो ये कह रहे हैं. नहीं, आप अपना व्यू बताओ ना सर. मैंने मेरा व्यू बता दिया सर. आपको 44 AD में जाना पड़ेगा वंस यू यूज. ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील सूरी जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बाय डेटर्स डायरेक्टली, इज इट टू बी कंसीडर इन कैश और बैंक फॉर टैक्स ऑडिट? कैसे माना जाएगा? तो सर जी, इनको ये बताओ कि आज की डेट में आप मेरे अकाउंट में 50,000 से ऊपर कैश जमा कराने से पहले आपको पैन नंबर देना पड़ता है. आप कौन हैं? तो ये जमाने अब चले गए. अब आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कैश नहीं जमा करा सकते. आपको पर्पस भी स्टेट करना पड़ता है. और अगर डेटर ने कैश जमा कराया है तो वो कैश ही माना जाएगा,
बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। कैलाश चंद अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, टर्नओवर से 10 लाख ओनली, प्रॉफिट इज लेस देन 5%, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। सर ये 44 AD वाले क्वेश्चनों को मत पीछे लो अभी सर, वो यहाँ नहीं है इशू, वो अलग चैप्टर है, उसके ऊपर अलग वो है ये नहीं, क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं टैक्स ऑडिट 44 AB में रिक्वायर्ड है यदि 10 लाख सर 10 लाख जो है 1 करोड़ से तो नीचे टर्नओवर है। है, लेकिन प्रॉफिट लेस है। हाँ तो अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख की लिमिट है, तो आप तो वैसे ही एसएससी नहीं हो, ओके, रिटर्न ही क्यों फाइल कर रहे हो? हाँ ठीक बात है। 2.5 लाख से ऊपर आओगे तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर वैद्या जी, सेल्स मोर देन 1 करोड़, नेट जी। प्रॉफिट लेस देन मैक्सिमम इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इज ऑडिट कंपलसरी? हाँ जी, मेरी ओपिनियन यस, में कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब टर्नओवर बेस है ना सर, बिल्कुल ठीक बात है। सर वो एक्चुअली क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो वो क्या कहते हैं, आप ये जो है ना इसमें 44 AD में अमेंडमेंट की दरकार है। हम्म, ये देखो एक सेकेंड, if possible, आ, ये सर ये है, if the provision of section 44 AD4 are applicable in his case and his income exceeds the maximum marginal amount। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि अगर मेरी लॉस है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये इशू सर फिर बहुत कंट्रोवर्शियल है। आप अपने क्लाइंट को ओपिनियन देने से पहले कोई अथेंटिक सोर्स की आप कोई ओपिनियन लीजिएगा, वरना आपका क्लाइंट ट्रबल में आएगा और फिर वो आपको इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी में ले जाएगा। तो कृपया बिल्कुल ना करें। ये AD4 का मतलब ये है कि अगर आपकी उन 5 सालों से बाहर जा रहे हो तब आपके लिए, इसके लिए राजेश जी 44 AD पे अलग से आप कराएं, क्योंकि ये कंफ्यूजन आज के नहीं है, ये पिछले साल के। ठीक है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निधि अग्रवाल जी पूछ रही हैं, 43CA is applicable or not in case of 44AD? 43CA 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 जो अभी मेरे को देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं, आप होल्ड करा लीजिए, मैं चेक करके निकाल के देखता हूँ। 43 क्योंकि क्या है 28 to 44 आता है टैक्स ऑडिट में। जी जी जी, लेकिन ये जो है कैपिटल एसेट के लिए कहता है, लेकिन है ये बिजनेस में चैप्टर 4 में ही है, चैप्टर 4 में ही है, तो आना चाहिए। यस, क्योंकि बिजनेस इनकम 28 to 44 है। अब 44 में ये चैप्टर आएगा, मेरे को फ्लैग कर लो इस इशू को प्लीज, मेरे हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, फ्लैग कर देते हैं। हाँ जी। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, नॉर्मल बिजनेस टर्नओवर 4.5 करोड़ थ्रू बैंकिंग चैनल एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मोर देन 75 lakhs फ्रॉम शेयर्स, वेदर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल? 4.5। बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे स्पेक्यूलेशन हो चाहे नॉन स्पेक्यूलेशन हो, एग्रीगेट होगा। ठीक है, एप्लीकेबल है सर, ठीक है सर। सर ये आपकी जो पीपीटी है ना, ये अपडेट नहीं हो रही साइट पे, ये रन नहीं कर रही सर हमारे यहाँ। एक मिनट, मैं एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा लूंगा। आप दोबारा ले लो सर। नाउ देयर इज नो क्वेश्चन सर, गो अहेड। हाँ, अब आ गई आपकी। आ गई सर, नहीं यही सेम स्लाइड पहले आ रही थी, एक अब इसको अपडेट करो ना। एक मिनट, अब आपकी देखें, अब चल रही है। हाँ, नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। ठीक है सर। जी सर, जी सर। तो अब मैं इससे आगे चलता हूँ।
जी अब सर। हम आते हैं कोर सब्जेक्ट पे। आप लोग इस पे ज्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा, कुछ चीजें मैं निकाल दूंगा। जी सर। जी सर। आ, ये परफॉर्मा वगैरह निकाल दो सर। हाँ सब है, नहीं इसमें एक दो इशू कहीं कहीं जी लूंगा सर। जी सर। जहाँ मेरे को लगेगा, बाकी सब समय को भी ध्यान रखना है। ठीक। आ, इसमें जो है सिर्फ एक ही पॉइंट बताना चाहूंगा कि 3CA और 3CB के अंदर एक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 3CA में ये भी सर्टिफाई करना है, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा एक एरिया है, क्योंकि जिस हिसाब से एक क्लॉज से लेकर और 42 क्लॉज तक जो हमारी रिपोर्टिंग है, उसमें हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। अगर क्लाइंट वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो आपको जहाँ पे ऑब्जर्वेशन देनी है वहां पे आप कोई एक ऐसी चीज डालें जिससे कि कल को आपको कोई डिसिप्लिनरी की या इनकम टैक्स वाले आपको कोई प्रॉब्लम ना करें। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट, तो वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 43C है, 43B है, आपकी पीएफ की रिटर्न है, आपके जो है प्रॉपर्टी के पेपर हैं, कन्वर्जन है, टीडीएस की रिटर्न है, जीएसटी की रिटर्न है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कृपया करके हमको ये जो है, आपको मैं आगे बताऊंगा, हमको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना चाहिए। अब सर ये यूटिलिटी है, यूडिन नंबर लास्ट ईयर भी था, लेकिन यूडिन की यहाँ पे आपको दे दी है और मुझे ऐसा बताया गया है अगर आपको, वैसे तो 15 दिन में यूडिन लेना है, आप बाद में भी ले सकते हैं, आप क्लाइंट को बाद में भी दे सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस बार ये यूडिन नंबर से जब तक नहीं डालेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा मुझे बताया। चलिए सर, यहाँ पे आपको 3CB में जितनी आप ब्रांच जिसकी ऑडिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दें। दो तीन क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जो कि मैं लेना चाहूंगा कि जॉइंट ऑडिटर के केस के अंदर क्या होना चाहिए। यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर को हमारी कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहाँ ड्रॉप डाउन आना चाहिए कि अगर आपके एक से ज्यादा ऑडिटर। दूसरी चीज, अपलोडिंग करने के लिए यहाँ पे एक ही आदमी को ऐड सीए किया जा सकता है, एक से ज्यादा आदमी ऐड सीए नहीं। तो जिस केस के अंदर दो चीजें पॉसिबल हो, पहली ये पॉसिबल हो सकती है कि मैं ऑडिटर हुई नहीं, ऑडिटर राजेश जी और अपना कोहली साहब, कंपनी मुझे कहती है कि ये दोनों लोग आपस में जो है बातचीत नहीं करना चाह रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। राजेश जी से कह रहे हैं कि कोहली जी की ऑडिट रिपोर्ट को मैं नहीं लिखता, और कोहली जी कह रहे हैं मैं राजेश जी से बात। अब इन्होंने जो है वो दीप जी को ये कहा कि भाई आप ये ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेट कर दो, हम आपको ऐड कर देते हैं, तो रिपोर्ट की कॉपी दे दें। तो अब दीप जी को तो ये मालूम नहीं है कि भाई इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कितनी है। तो भाई साहब, अगर आप यहाँ चढ़ा रहे हैं ऑडिट और आप जॉइंट ऑडिटर हैं या सिर्फ कंसोलिडेट ऑडिटर हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन में जरूर इस बात का खुलासा, एक्सप्लेनेशन कर दें दैट यू आर नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल, देयर आर अदर पीपल। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ क्वालिफिकेशन में आपको वो दे देना है, ऑब्जर्वेशन में दे देना है। अब सर ये क्वालिफिकेशन है, पिछले साल भी थी, इस साल भी है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इस पे ले लूंगा। क्वालिफिकेशन में मेरे को
लगता है एक ये जरूर पॉइंट इस बार आ जाएगा, एमएसएमईडी की जो है डेफिनीशन जो है इन्होंने चेंज करी है अपनी कोरोना की उससे रिलेटेड, और ये 31 मार्च 2020 से पहले कर दी गई है। तो वाइल सीइंग टू दिस कि आप एमएसएमई का स्कोप बढ़ गया है, अब हम लोग भी एमएसएमई में आ गए हैं, तो क्या हम इसके अंदर फॉलो आउट करेंगे रिपोर्टिंग में या नहीं, तो ये आपको एक और चीज ध्यान देनी, 56 टू 7A 7B के बारे में भी हमको डिटेल देनी है। ये चीजें आपको जान, कुछ एक सैंपल क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर जो मैंने बनाए थे वो मैंने फिर इसको करे हैं, इनका रिव्यू अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई हो स्पेसिफिक तो मैं उसको ले लूँगा। मेरे अपने सबमिशन में आपको हमको जितने भी क्लॉजेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्क्लोजर हो सके वो हमको देना चाहिए, in order to not save our skin. I will never say to save our skin, because गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये हमको काम जो दिया है, ये बहुत ही लोग इसके पीछे हैं और हमको बहुत सिंसियरिटी से करना है। तो हमको स्किन नहीं खाली बचानी, बल्कि हमको अपनी ड्यूटी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज ऐसी हैं जो हम लोगों ने नहीं करी, क्योंकि मैं इनको क्वालिफिकेशन नहीं कहूँगा, ये ऑब्जर्वेशन कहूँगा कि अगर मुझे पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे एक केस में ऐसा हुआ कि वो लोग एक चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के एक सिटी गए और उस चार्टर्ड फ्लाइट में जब उसको ऑडिट के दौरान क्वेश्चन पूछा गया तो उसने ये कहा कि ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। कहा भाई क्यों? कहा जी मेरे सेल्स के आदमी है, ये मेरे सारे वो हैं, उनकी वाइफ्स हैं। तो बोला भी उनकी वाइफ पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे नहीं, तुम्हारी वाइफ कैसे नहीं? बोले जी मेरा जो सेल्स वाले जो है डीलर, वो अगर घर में खुश नहीं रहेंगे तो वो सेल्स कैसे करेंगे, वो सारा टाइम टेंशन में रहेगा, तो मैं उनकी फैमिली को भी ले जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, आपको उनके परक्विजिट में जोड़ना है जोड़ो। तो हमको इस तरीके के बॉर्डर लाइन चीजों पे वी नीड टू मेक इट डिस्क्लोजर। सिमिलरली इन केस ऑफ क्रॉस चेक और ये सब चीजों को हमको डिस्क्लोजर करना है। ये जो है मैंने एक सैंपल बना रखा है और प्रेजेंटेशन राजेश भाई को ऑलरेडी दे दिए। कृपया करके, क्योंकि मेरे बहुत सारे इसी टैक्स ऑडिट पे लेक्चर हैं, आप लोग मेरी गलती निकाल के बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, इनको आप देख, इस पे मैं ज्यादा नहीं समय लेना चाहूँगा। अब सर ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूँ, टैक्स ऑडिटर या नहीं। ये सेक्शन में चेंज हुआ था एंड आई नीड टू लुक दिस। अगर मैं कंपनी में ऑडिट कर रहा हूँ और कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? अगर मेरे पास सीओपी नहीं है क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? अगर मैं कोई रिलेटिव हूँ या मैं एचयूएफ का मेंबर हूँ क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रस्ट के अंदर अगर कोई सेक्शन 13(3) के अंदर ABC और डबल C क्लॉज के अंदर अगर रेफर्ड आदमी हूँ क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? और अगर मैं उसकी रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? या मैं कोई रिलेटिव हूँ जो कि सब क्लॉज 1, 2 और 3 जैसे कि मैंने ऊपर बताया तो उसमें है। रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स में थी। या मैं एम्प्लॉय हूँ, ऑफिसर हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिटेनरशिप ले रहे हैं और वहां पे टैक्स ऑडिट भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा अगर आप वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हमको ये टेस्ट भी कर लेना है कि हम लोग क्या एलिजिबल हैं।
इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दी एसेट। अगर मेरी मिसेस मान लीजिए 5 लाख रुपए सैलरी ले रही है और बाकी के लोग जो सैलरी ले रहे हैं वो 25,000 रुपए से ऊपर कोई नहीं है, तो क्या वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? क्या नए कोड ऑफ इथिक्स के अंदर मेरा जो है वो वायलेशन है या नहीं? ये सब एक कॉल्स अपने को लेनी है। इस सेक्शन को कृपया करके बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। अब सर हम लोग आ जाते हैं क्या ये हम नाउ we need to determine the assessable value, we need to determine the value of the private company, we need to take various consolidation law, and also we need to see that the books of accounts are maintained and checked by us. तो ये इसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हमारे लगते हैं, अगर हमारा इंडेस है तो इंडेस भी हमको लगता है। कन्फ्लिक्ट अगर कोई है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में, मैं कई लोगों के लेक्चर सुन रहा था और उसके अंदर मुझे ऐसा बताया गया कि अगर आपको बॉर्डर लाइन कोई क्लाइंट के फेवर में है तो आप रिपोर्टिंग ना करें। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है तो कृपया करके सबसे पहले लेटेस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जरूर देख लें। ऑल्सो वो ओवर रूल नहीं है वो देख लें, और अगर वो बॉर्डर लाइन केस से बियॉन्ड है तो आप ऑब्जर्वेशन में आप अपने क्लाइंट का व्यू दे दें कि इनफैक्ट इन अकॉर्डिंग टू यू this might be possible, but the client is relying on this judicial pronouncement, and as such, the reporting is not being made by the auditor. अगर आप रिपोर्ट करें तब भी आप क्लाइंट के फेवर की लिखें, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एविडेंस है फॉर द पर्पस ऑफ क्लाइंट्स असेसमेंट। तो यहाँ पे ये अपने को बहुत ध्यान रखना है। अब सर बहुत आसान है, हम एक एक करके चलते हैं क्लॉजेस के ऊपर। अब क्लॉजेस आ जाएं तो पहली 7 क्लॉजेस ये हैं, इनके बारे में आपको ये जो है टिक करना पड़ेगा कि आप किस चीज में ऑडिट कर रहे हैं, और ये ऑडिटर को जो है बताना है क्लॉज 8 में कि किस क्लॉज के अंदर होगा। क्लॉज 4 के अंदर हमें जो है ये बताना है कि जीएसटी नंबर या इनडायरेक्ट टैक्स नंबर आपके पास जो हैं, अगर सर्विस टैक्स नंबर कन्वर्ट हो गया जीएसटी में तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्विस टैक्स भी जिंदा है, जीएसटी नंबर भी जिंदा है, और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे हैं जिसको मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा। तो वो आपको सिर्फ नंबर देने हैं, इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं देनी। और अगर मैं ये पूछता फिजिकल होता तो मैं सबसे पूछता कि हम लोग कितने लोग क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, कितने लोग हमारे से क्लाइंट में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं। तो हमें ये बात को ध्यान देना है कि ऑडिट के अंदर एविडेंस अपने पास रखने के लिए आपको सारे एफर्ट करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बाद में ये तकलीफ आ सकती है। तो बी केयरफुल, वी नीड टू हैव मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, we need to have appointment letter, we need to have lot of other documents हमारे पास होने चाहिए इफ वी आर खाली ट्रायल बैलेंस से टैक्स ऑडिट ना करें। अभी इशूट ने एक प्रोग्राम किया है जिस कमेटी को नवीन जी की अध्यक्षता में पहले साल मैंने एज ए चेयरमैन चलाया, टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो जैसे कि हमारा एफआरआर होता था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, इसी तरीके से टैक्स ऑडिट में कौन कौन सी मिस्टेक्स कॉमनली हम लोग करते हैं, इंस्टीट्यूट ने अभी दिया है और उसको हम जरूर देख लें और उस पब्लिकेशन को हो सके तो डाउनलोड कर लें। 9A, 9B, 10A, 10B, ये सब क्लॉजेज जो हैं ये अपने नॉर्मल हैं। इनमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं क्वेश्चन आंसर में ले लूँगा। ये इस तरीके से टोटल अगर हम चाहें
तो ये टोटल 44 क्लॉजेज हैं, जिसमें से मैंने बताया जीएसटी 44 और 30C ये जो है क्लॉज आपकी नहीं है, ये क्लॉज जो है डेफर की गई है गार परमिसेबल वाले के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं है। ये सिर्फ टोटल है, और बाकी चीजों के अंदर ड्रॉप डाउन में एक एक क्लॉज वाइज अगर आप कहें तो मैं अब आपको लेना चाहूंगा, और कोई क्वेश्चन अगर यहाँ तक हो तो मैं एक बार रुक जाता हूँ, आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। राजेश भाई, जी कोई प्रभु क्वेश्चन जी, आज 4 जी क्वेश्चन है क्वेश्चन सर, लेने? हाँ छोटे जी, छोटे निपटा 4 देते हैं। क्वेश्चन है। हाँ जी सर। अच्छा चलो, अखिल मित्तल जी तो पीपीटी के बारे में कह रहे हैं, वो मैं दे दूंगा। अच्छा पीपीटी ये भी है। लास्ट क्वेश्चन है, महावीर पट्टी जी पूछ रहे हैं, हाउ टू ऑडिट इफ पार्टली बुक्स आर अवेलेबल और सम रिकॉर्ड इज मिसिंग। सर आज अग्रवाल की जी। डेट में, हाँ जी हाँ जी, जी सर। आ गई जी आवाज। हाँ यस सर, यस सर। एक गाइडेंस नोट होता था इशूड का कि जो पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं हो तो उनको कैसे ऑडिट करना। बहुत पुराना वो था, अब शायद वो नहीं है, उसको ड्रॉप भी नहीं किया है, लेकिन आजकल नहीं मैंने देखा। लेकिन अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी नहीं है तो सबसे पहले आपके डिस्क्लोजर ट्रू एंड फेयर के होने चाहिए। दूसरा, आपको क्लाइंट से सब चीजें मांग लेनी चाहिए, और वो इनेबिलिटी करे तो आपको उस पे एक हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है कि हमारे ऑडिटर को इस केस के अंदर असाइनमेंट रिफ्यूज करनी चाहिए। कृपया उसको देख ले, मैं ऑडिट का आदमी नहीं हूँ। उसके अंदर सरकमस्टांसेस बताए हैं कि किस केस के अंदर आपको ऑडिट नहीं करनी, तो कृपया उनको देख लें। मेरे ओपिनियन में जहां बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, अपने हाथ जलाने की कोशिश ना करें प्लीज। देयर मे नाउ बी 100 मोर avenues available to you. जी सर, नाउ नो क्वेश्चन सर, प्लीज ओके, गो अहेड। चलिए सर, एक इसमें पॉइंट बता दूंगा, कई बार कोर्ट अपॉइंट कर देती है। कोर्ट अगर अपॉइंट करी और आपने असाइनमेंट ले ली तो आपको डिस्क्लोजर फिर पूरे दे के करनी पड़ेगी, फिर आप नहीं भाग पाए। तो इसलिए कोर्ट की अपॉइंटमेंट लेने से पहले सोच, ठीक है जी। क्लॉज 4 के अंदर मैंने बताया कि आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर क्या है, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में सब नंबर ले लें। ये सारे नंबर अगर जिनता है तो आपको ले लें, अगर ये नंबर खत्म हो गए हैं तो आपको। अब इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज के ऊपर होता है, ये बहुत बड़ा है। 240 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, मेरी पीपीटी को उसमें देख लें, इसके अंदर कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको देख सकते हैं आप। एंट्री टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी अगर कोई है तो उसको भी आप देख। ये स्टेटस है, ये आपके क्लॉज 6 की यूटिलिटी है, 5, 6, 7 की, कि आपको स्टेटस बताना है एसएससी का, प्रीवियस ईयर असेसमेंट। ये सिर्फ नए लोगों के लिए है, जो नए यंग मेंबर हैं उनको ध्यान से देखें। अब सर, ये क्लोज ए में अगर आप कर रहे हैं, ये यूटिलिटी में 5 करोड़ वाला नहीं करा, प्रोवाइजो इन्होंने यहाँ ऐड नहीं करा कि आप प्रोवाइजो के अंदर फॉल आउट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज को देखना है। अगर आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप क्लोज ए में 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हैं और आपने 5 करोड़ वाला नहीं देखा है और क्लाइंट ने आपको अपॉइंटमेंट कर दी, वहां पे रिटर्न वो भर रहा है, इधर ऑडिट आप कर रहे हैं, क्लाइंट कहता है ऑडिट कर दे, मुझे कैलकुलेट नहीं करानी, कैलकुलेट की कॉस्ट ज्यादा है, ऑडिट की कम है, तुम कर दो, तो आपको डिस्क्लोजर देने हैं और आपका अपॉइंटमेंट लेटर उसी बेसिस पे लेना है। क्योंकि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करेंगे तो प्राइम ड्यूटी आपकी हो जाएगी कि आपको ये सब चीजें अवेलेबल होंगी। तो भाई कल को तुमने ऑडिट क्यों करी जब वो एलिजिबल नहीं था, तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें प्लीज बी केयरफुल। तो ये क्लॉजेस के अंदर यहाँ पे दिया हुआ। और यूटिलिटी जो है
और जो मेरा क्लोज है, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको भी हम बोल चुके हैं एक दो बार। ये यहाँ पे कहता है टोटल सेल रिसीट इन बिजनेस एक्सीडिंग 1 करोड़। तो 44 AD वाले हैं वो कहाँ होंगे? वो नीचे होते हैं 44 ABE में। 44 ABE कुछ कहता है, वो मैंने पहले पढ़ा था। और आपका यहाँ क्या कहता है? ये जो कानून कहता है वो ये कहता है इफ द प्रोविजन ऑफ 44 AD4 आर एप्लीकेबल। AD4 जो है कुछ और कहता है। और नीचे यूटिलिटी में मुझे आके ये कहता है कि अगर लोअर देन है। इसलिए मैंने कहा था कि लोअर देन वाले को आप रखें, क्योंकि आपसे यूटिलिटी के अंदर ये पॉइंट को टिक करने को कहेगा अगर आप ऑडिट करें। तो बी केयर। ये मैं 44 AD को छोड़ रहा हूं। यस सर। अब सर इस क्लॉज को बहुत ध्यान से बोलता हूं। पहला ये है 11A का, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रेस्क्राइब अंडर 44AA। इफ यस, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब्ड जो है कानून के अंदर दिया हुआ, उसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि प्रेस्क्राइब क्या है। अब नेक्स्ट क्लॉज बड़ा सेंसिटिव है, इसको बड़ा ध्यान से भी है, क्योंकि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन and the address at which the books of accounts are kept. Who is responsible to report this clause? Me. As a chartered accountant, I have to certify the address at which the books of accounts are maintained and kept. अब जी ये एक भारी सवाल है। मेरे पास क्लाइंट लैपटॉप लेके आ जाता है और कहता है मेरी बुक्स तो क्लाउड पे है, खास तौर आज की डेट के अंदर मेरा सारा ऑफिस क्लाउड पे है। आप अभी मुझे अपने ऑफिस में बुला लें, बताएं कि भैया किस किस क्लाइंट की फाइल निकालनी है, मैं क्लाइंट की फाइल निकाल दूंगा। मेरे को फिजिकल फाइल देखने की जरूरत नहीं। 85% ऑफ माय ऑफिस इज ऑन क्लाउड। तो ये हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि क्लाइंट की फिजिकल प्रीमिसेस में मैं नहीं गया, मैंने ऑडिट नहीं करी। ऑडिट मैंने क्लाउड पे करी है और मुझे क्लाउड पे स्कैन कॉपी दिखाए हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे और ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड ने इस चीज के ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक। बाकी चीजों पे भी हमको अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे नहीं है तो क्या करना है, स्कैन पे दिखा रहे हैं तो डिजिटली साइन लीजिए। जो क्लाइंट आपको डिटेल दे रहा है कि भाई ये ले लो, ओरिजिनल वाउचर कहता दिखाऊंगा नहीं, कोरोना है आपको जो मर्जी करो, तो हमको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। क्लाउड पे दिखाऊंगा, सब कुछ यहाँ रिपोर्ट करना है ऑब्जर्वेशन। तो ये सर आपको ध्यान रखना। फिर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन, ये भी मुझे देने हैं कि कौन कौन से वो है। So I have to be very careful in clause 11 also. Now I will not take much of your time कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ये बताया है। तो ये का रूल है 6F 2 and 3, इसको जो है वो रखनी चाहिए। उसका मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, ये सब एप्लीकेबल है। बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ है ये सब ऑथराइज, ये इनको स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है, जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि आईटी वाला, तो प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोटिफिकेशन से इन्होंने उसको स्पेसिफाइड प्रोफेशन कहा है। ये कुछ केस लॉ मैंने दिए हैं। और सर ये आपको लिस्ट ऑफ सेक्शंस के बारे में बताना है कि कहाँ का प्रॉफिट आपने यहाँ दिया है, और ये जो है यहाँ पे जो है वो किस किस सेक्शन का कितना प्रॉफिट आपके क्लाइंट के इंक्लूडेड है। तो ये एक चीज देखनी है। यहाँ पे एक मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे एक रेज किया था
अगर मैं दो बिजनेस रखता हूँ, मान लीजिए एक मेरी केमिस्ट की शॉप है और एक साथ में मेरी राशन की शॉप। अब मैं केमिस्ट के अंदर तो जो है दोनों के अंदर जोड़ने के बाद मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर बनती है। अगर मैं एक को 44 एडी में ले जाऊं, क्या मैं दूसरा कर सकता हूं? तो मेरी ओपिनियन में, क्योंकि टैक्स ऑडिट के अंदर ऐसा दिया हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन पॉसिबल है। क्योंकि अगर यहाँ नहीं होता, लेकिन एक ब्रांच और एक हेड ऑफिस को या दो ब्रांचेस को अगर आप कहें कि ये दोनों अलग अलग बिजनेस हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग होने चाहिए, ऐसा है। लेकिन मेरे पास इस बात के लिए किसी तरीके का कोई केस लॉ नहीं है, क्योंकि वहीं पे भी ये अभी नहीं आया। कुछ एक नए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। आईसीडीएस पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, हमें ये बताना है कि आईसीडीएस की वजह से कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है और नेट इफेक्ट क्या आएगा, और इसका ये शेड्यूल है। आईसीडीएस सभी एप्लीकेबल हैं आज की डेट में, और ये 145(2) वगैरह से रिलेटेड है। इसके लिए एक अलग सा ही चैप्टर है। बहुत सारी डेवलपमेंट आईसीडीएस में हो रही है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक से मेरे यहाँ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट से पेज नंबर 83 to 89 और पैरा 23 से एग्जाम्पल यहाँ दिया है, और मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि स्टॉक की वजह से किसी तरीके का कोई भी आईसीडीएस के अंदर चेंज नहीं आएगा। I may be having a different personal opinion, but where my alma mater has given anything, I cannot override them, and as such, you need to see para 23 of my guidance note 83 to 89 in respect of 145A adjustment. इसमें मैंने सिर्फ वैट को जीएसटी के अंदर और एक्साइज को जीएसटी के अंदर चेंज कर दिया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। अब सर 15 है, ये सर अपने को ऑडिट पेपर संभाल के रखने हैं। गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसकी टैक्सेबिलिटी चाहे बाद में आए, लेकिन आपको ये रिपोर्टिंग देनी है ड्यूरिंग द ईयर में। यू नीड टू गिव ओनली ड्यूरिंग द ईयर। ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होंगे, कैपिटल रिसीट है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी आइटम यहाँ दी तो वो सीधा आपके 143(1) में एडजस्ट। हमारे बहुत सारे केसेस के अंदर कई बार ऐसा हुआ कि हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर जो उनका था, उसमें कोई ऐसी आइटम थी, उसको हमने यहाँ डाल दिया और बिजनेस में एडजस्टमेंट नहीं करी, और वो नॉन टैक्सेबल थी। तो आप नहीं दें और आप उनको जो है क्वालिफाई करें। तो आपको ये देखना है कि नॉट क्रेडिटेड टू पी&एल, जो क्रेडिट कर दी पी&एल में, उनको यहाँ नहीं देना। दीज आर नॉट एप्लीकेबल। एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इट माइट बी पॉसिबल आए ना हो, सिर्फ इन्फो है। तो अपने को क्लाइंट से एमआर के अंदर ये लेना है कि आपके कितने ऐसे एस्केलेशन क्लेम हैं जो आपने फाइल करे और आपको इस साल में 31 मार्च तक आते। इसी तरीके से एनी अदर आइटम कैपिटल भी हमको देना है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग or both is transferred during the previous year for a consideration less than the value adopted
और असेस्ड और असेसेबल, ये तीनों चीजें हैं। एडॉप्टेड हो जाएगी जब वो स्टैंप वाले उसको रजिस्टर करेंगे और फिर असेस करेंगे। लेकिन उन्होंने असेसमेंट की नहीं, आपने ऑब्जेक्शन कर ली, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर ली, अभी डिस्प्यूट है तो आपको वो भी लेनी है। एसेसेबल, जहां पे एसेस नहीं हुई लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, कोई आपके सर्किल रेट नहीं है, तो या तो आप क्वालिफाई करें और या आप जो है वो इसको जो है डिस्क्लेमर दें। अब मैं एक क्वेश्चन जो फ्लैग किया था राजेश जी, 43 CA इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। जी सर, जी सर। तो अब मैं आंसर कर रहा हूं, 43 CA इज नॉट ए कैपिटल रिसीट, उसको यहां लेना है और बिजनेस की टर्नओवर में मानना है। अब ये क्लॉज के बाद मैं आया, वैसे तो मैं पूरा एक्ट देके एक बार कहीं होगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको वो कहता है कि ये बिजनेस इनकम बन जाए। चलिए सर, ये डेप्रिसिएशन छोड़ देता हूं। हाँ, डेप्रिसिएशन में एक बात आपको बता दूंगा कि अब जो डेप्रिसिएशन है वो इस साल जो है वो किसी चीजों पे 15% बढ़ गया है, उसका सेपरेट ब्लॉक है। 30 वाली 45 हो गए और जो 15 वाले थे वो 30 हो गए। अगर आपने 28 अगस्त 2019 से कोई लॉरी मोटर इसके ऊपर है, 30% से 45 हो गई और 15 से 30 हो गई, आपने अगर खरीदी है, उसका नोटिफिकेशन आया, तो वो आपको नया ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा आपके रिटर्न के अंदर, जो आपके कार्स, मोटर लॉरी एटसेट्रा के ऊपर एनहांस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। 15 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। ये ड्रैकोनियन क्लॉज है सर, यहाँ पे हमारे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमाउंट एडमिजिबल एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मुझे सर्टिफाई करना एडमिजिबल एंड ऑल्सो fulfill the condition, if any, specified under the provisions of Income Tax Act 1961 or Income Tax Rule 1962 or any other guideline, circular, etc. issued in this behalf। तो ये मेरा महान है, यहाँ भगवान की आ जाएगी, कितनी गाइडेंस हैं, कितने सर्कुलर हैं, आपको उनको सबको ध्यान में रख के अमाउंट क्वालिफाई करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो भी अपने डिस्क्लेमर देना चाहें वो दे। ये सारे सेक्शन हैं जिन पे अपने को रिपोर्टिंग देनी है क्लॉज नंबर 19 में। इसको जो है मैं जो है डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, ये जो है हर एक सेक्शन के बारे में ये सारा जो है आपको क्लॉज 20 में रिपोर्ट करना है। बोनस कमीशन, इसके ऊपर भी कई बार कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, अब ये गुरुजी ने एक तमका छोड़ रखा है, जो एक इंस्ट्रक्शन दी एम्प्लॉइज। सर मैं यहाँ दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात, ये क्लॉज की रिपोर्टिंग डिसअलाउंस क्लॉज नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल को डिसअलाउंस कैलकुलेट नहीं करना, फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है खाली। और आपने यहाँ फैक्चुअल रिपोर्टिंग करी और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट पेमेंट के बीच में डिफरेंस हुआ, बात की हुई, तो 143(1) में एडजस्टमेंट आएगी और आपको 154 अपील करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने यहाँ नहीं दी और पीएफ डिपार्टमेंट के साथ सिंक हो गया, जीएसटी के साथ हो गया, एमसीए के साथ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ हो गया, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पता लगा
एक नोडल एजेंसी बना दी कि जितने भी भारत सरकार के सरकारी डिपार्टमेंटों में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर आधार पे रिलेटेड है, ये आधार और पैन जो इकट्ठा किया ना जी, हम तो सोचे अच्छा हुआ 60 रुपए बच गए, ये 60 रुपए नहीं बचे, ये अमेरिका है, ये अमेरिका की तरह हमको यूज किया है इसमें। अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप नंबर होता है, उससे वो सब कुछ बता देते हैं कंप्यूटर पे देख के कि तूने कितने क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट किए, तेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये भी सर अगर ये कंसोलिडेट हो गए तो अपनी रिपोर्टिंग। नाउ आई विल से माय प्रोफेशनल हैज टू टेक द कॉल if they are saying this amount is not being provided, or yeah, we have been told this is my report, please see, this is not a report of the client, this is the report of a chartered accountant, balance sheet is being prepared by client and audited by us, but this report is not prepared by the client, may be given to us by the client, but we have to check the authenticity of everything. So if you are taking a risk of not giving this information or giving a false information, then you are in trouble. However, you can quote the case law, you can quote the instruction number in the qualification and observation. And if you are taking a risk of not giving these detail here, then you should give in that place the entire detail along with the client's detail, that client have said he will look into this matter. But here I am dicey. I say I have no duty to say that these are disallowances. I have a duty only to give the factual report. So I must give even if delays are there. ये ग्रेजुएटी वगैरह भी देना है सर यहाँ। अब सर ये आ गया 21A कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट, ये मैं पहले बता दिया आपको। बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल पर्सनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो यार आपको कॉल लेनी पड़ेगी, क्या पर्सनल है क्या वो है, ये आपको कॉल लेनी। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई लॉ को आपने, बहुत जगह एडिशनल अमाउंट को पेनल्टी बोलते हैं, लेकिन जब आप उसका एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये आएगा कि वो एडिशनल अमाउंट जो है पेनल्टी नहीं है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ इज ए पेनल्टी एंड एज सच दिस इज टू बी सीन। 4:30 राजेश भाई, सम कॉल इज देयर फ्रॉम योर साइड, एनी अर्जेंट? नहीं अर्जेंट नहीं, तभी मैंने कॉल की थी जब आपकी ये मूव नहीं कर रही थी सर। सॉरी। और दोनों चीजें देनी है, पेनल्टी बाय वे ऑफ फाइन तो जो वायलेशन है, और अदर पेनल्टी जो ऊपर कवर नहीं है, तो सभी कुछ देख लीजिए। यहां पे कैलकुलेट करना है, पिछली क्लॉज में मैंने बताया था इन्फो देनी है, यहां पे आपको इनएडमिसिबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये आपकी ड्यूटी है। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो टैक्स नहीं डिपॉजिट हुआ और पेड ड्यूरिंग द ईयर हुआ, उसकी आपको डिटेल दें। ये जहां जहां wherever there is a section written, we need to go back to the section and we need to look into the section कि उसको जो है हमको कंप्लाई करना है। जनरल परसेप्शन की कोई वैल्यू नहीं, we have to have a section. So this is the situation. Then next is the detail of payment on which tax has been directed but not paid on or before due date of specified under 139(1). तो अब जो 139(1) है ये नवंबर हो गई है, तो हमको नवंबर तक इसके बारे में बताना है। ई यूटिलिटी में वो पैन की भी चीज मांग रहा है, लेकिन हमारे उसके अंदर नहीं है। दोनों ही क्लॉजेस के अंदर 21B(2)(a) कैपिटल एंड कैपिटल बी दोनों में पैन मांगता है, ये इसके अंदर।
ये 21B का 3 है, IB 139(1) वगैरह से रिलेटेड है। ये हम कई सालों से कर रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें। ये खत्म हो गए हैं फ्रिंज बेनिफिट वगैरह। 40A इसके अंदर भी हमारे को अगर कोई इस तरीके की रॉयल्टी वगैरह ये होती है तो वो हमको देंगे। C amount debited to P&L account being interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible। तो पहले भी आपको मैंने बताया कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी है जब आपको इनएडमिसिबल कैलकुलेट करना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को यहाँ पे देखना है। कैन आई ऑल्सो टेक टी along with the lecture? Yes sir, yes sir. Thank you sir. Please sir, please. ये 48(3) में भी अपने को डिसअलाउंसेस बताने और 43A में भी अपने को डिसअलाउंसेस। सर वी नीड टू हैव ए डिफरेंस इन रिपोर्टिंग एंड डिसअलाउंसेस। ड्यूटी क्या कास्ट की गई है, जो मेरी ड्यूटी कास्ट की गई है मुझे वो काम करना है। मैं लास्ट के 20 मिनट क्वेश्चन आंसर पे भी लेना चाहूंगा अगर कोई हो। तो ये माइक्रो MSMED में भी मेरे को क्लाइंट से MR में लेना है कि तुम्हारे पास कितने लोग रजिस्टर्ड हैं ये बताओ जो कि MSMED में हैं और आपने डिले पेमेंट करी है। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबको रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अगर डिले पेमेंट करेगा तो वो एक तो रिकवरी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमको सबको रजिस्टर कराना चाहिए और बहुत आसान है, एक ये उससे हो जाता है ऑनलाइन पे। जी 48(2)B इन शॉर्ट जिसको कहते हैं पेमेंट टू रिलेटेड स्पेसिफाइड पर्सन, ये जो है सेक्शन में डिफाइंड है। ये जो है हमको देखना है कि ये 48(2)B में जो पर्सन है इनकी लिस्ट भी लेनी है। इनके जो है अगर लार्ज एसएससी में आपको नहीं पॉसिबल है तो रिलाइड ऑन लिखना है, सर्कुलर के ऊपर आपको देखना है। ये मैंने सब यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आप यूटिलाइज कर सकें अपनी रिपोर्टिंग के अंदर। कुछ केस लॉ हैं जैसा कि मैंने बताया, अगर आप रिलाई करना चाहें तो ये ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। इसके अंदर इतने सेक्शन जो हैं जिन पे रिपोर्ट करना है। 90% केसेस में ये होते नहीं है, ये होते हैं उन लोगों के केसेस में जहाँ जो है साइट वाइट हो, नई चीजें हो, वहाँ हो। थोड़ा सा मैं राजधानी पे हूँ क्योंकि बहुत सारी क्लॉजेज हैं अभी। बुलेट टू अंडर। यस सर। मैं कहा बुलेट यूज करो सर, क्वेश्चन आंसर भी है। हाँ तो एक काम करें, कोई एक चैट में डाल दो प्लीज कि कोई स्पेसिफिक क्लॉज है तो मैं उस पर समय लगाता हूँ, बाकी जो है पीपीटी दे दीजिए। नहीं, थोड़ा सा जो जो मेन पॉइंट है अभी कवर कर लो। 10 मिनट तो है सर अभी, ठीक है 40 हुए ना, 5-10 मिनट है अपने पास। ठीक है क्वेश्चन 12 ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है जी। ये तो पीपीटी शेयर कर देंगे, सबको ले लेंगे केसेस तो वो। हाँ जी, थोड़ी सी इसके अंदर एक आध जगह छोटी छोटी लेटेस्ट डालनी है, जैसे डेप्रिसिएशन वाली बताई मैंने, वो जी एक जी आधा जी, छोटा डालना है। आप वैसे शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कर Amended दूंगा सर, मैं कर दूंगा। 28 नंबर, whether during the previous year SSCA received any property being share of a company not being a company in which public are subsidiary without consideration or inadequate consideration as referred in section 56(2)(7)(a। तो 56(2)(7)(a) में जाके अपने को देखना है और जो चीज वहां पे डिफाइंड है, जो चीज क्वालिफाई है, उन्हीं को हमको यहाँ पे देना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके एसएससी के पास आ गई और उसने कैपिटल अकाउंट में डाल दी और इन्वेस्टमेंट में
कोई चेंज नहीं किया। 10 रुपए की हर्ट किस चीज के ऊपर है, राइट है, क्या है, ये बहुत सारा। वो मैं राकेश गुप्ता जी का बड़ा कायल हूँ, उन्होंने इस सेक्शन को बड़ी अच्छी तरह समझाया और मतलब इसका ए टू जेड उसकी जो है ना क्या कहते हैं वो कर रखी, डाइसेक्शन अच्छी तरह कर दी। जो ये अदर सोर्सेज वाले में, तो वो आप कृपया उन पे दें, ये टैक्स ऑडिट पे मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। इसी तरीके से 5627B ये भी जो है इशू ऑफ शेयर के लिए है। ये असेसी अगर आपका कोई इशू करता है शेयर तो उसके लिए एप्लीकेबल है। ये भी एक जो है कंट्रोवर्शियल इशू हो गया है आजकल, वी हैव टू बी केयरफुल। सर 29A advance received on capital asset forfeited, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्स। तो हमको ये देना है कि 5629 के अंदर अगर कोई अमाउंट क्वालिफाई हो रहा है तो वो अब ये आपको मान लीजिए कोई एडवांस आ रखा है, ओपनिंग है, करंट ईयर में दिया है, ये 3 होंगे। आपके ओपनिंग आ रखे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछना है क्या ये आपका आज की डेट में लायबिलिटी है, पेपर दो, कोई चीज डॉक्यूमेंट दो। अगर इस ईयर में आया है और आपने फॉरफिट नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट दो। तो आपको हमको सबको इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन लेनी, क्योंकि संजय जी, अगर हमने ये रिपोर्ट नहीं करी तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी दीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल एसेट्स। आपकी आवाज कम है सर। इसमें वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल एसेट्स। हाँ जी मैं ये पूछ रहा हूँ जो एग्रीकल्चरल लैंड के संदर्भ में कोई एडवांस आया है और वो 4 फीट हुआ है, उसका क्या फेट रहेगा? देखिए सर, आपको इसके अंदर सेक्शन 5629 के अंदर जाना है और ये यहाँ पे कैपिटल एसेट के वर्ड को मत देखो। 5629 के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप कर सकते हैं, वरना कैपिटल एसेट अगर हमको इनकम टैक्स में देखेंगे तो आप सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, सच सम इज फॉरफिटेड। तो सबसे पहले तो एडवांस फॉर कैपिटल एसेट होना चाहिए, जी, फॉरफिट होना चाहिए, और उसके बाद वो क्या कहता है, निगोशिएशन डज नॉट रिजल्ट इनटू ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं हो। ये टैक्स ऑडिट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहता है अगर ये है तो बताएं। अब सर अगर हम ये क्वेश्चन पूछें नेक्स्ट में, क्या अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो एग्रीकल्चर जो आप कह रहे हैं, कौन सी एग्रीकल्चर, जो सेक्शन 214 के अंदर नहीं आएगी, जी, अगर 214 के अंदर वो फॉल आउट करेगी तो वो कैपिटल एसेट है। मेरा जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो कैपिटल एसेट जो कि एक म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, वट एवर मे बी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर वट एवर, तो जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो एक तो उसका एडवांस यहाँ आएगा ही नहीं। नंबर 2, अगर वो है भी कैपिटल एसेट तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। तो इसलिए दीप जी उन चीजों को यहाँ नहीं लेना है। लेकिन अगर हमारी क्लाइंट की बुक्स में कोई अमाउंट ऐसा रिसीव हो रहा है जो कि एडवांस है तो हमारा ऑडिट के लिए एक क्वेश्चन उससे पूछना लाजमी है कि आप हमको ये बताइए ये कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरी, ये अमाउंट पेबल है, ये अभी निगोशिएशन आपकी है और ये आपकी अभी फॉरफिट नहीं हुई। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में एनएफ डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? हाँ जी, जी सर। मैंने सर कानून नीचे दिया हुआ सब में। अब सर 29B ये 50,000 से ऊपर गिफ्ट जो है, जो 56 to 10 कहते हैं। अब 56 to 10 के अंदर तो
हर चीज आ जाती है। जो कहीं नहीं टैक्सेबल वो 56(2) में टैक्सेबल, 56(2)(10) में। ये सर मैंने दिया हुआ है। इसके ऊपर तो राजेश जी ने बढ़िया लेक्चर करवा ही चुका है, मैं ही अभी तारीफ कर चुका हूँ अभी गुप्ता जी की, वो उन्होंने बहुत बढ़िया लिया है। अब सर ये वाली क्लॉज वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होती है। प्राइमरी एडजस्टमेंट इंटरनेशनल वालों से रिलेटेड है, ये इसकी रिपोर्टिंग भी आ गई है, फॉर्म चेंजेस भी आ गई है। अगर आपने कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट करी है तो हमें देना है वो। और ये 30B भी उससे रिलेटेड है, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपने एक्सेप्ट कर ली है तो उससे रिपोर्टेड आपको डिटेल है। ये 30C चली गई। ये सर वो डिपॉजिट से रिलेटेड है, जो मैंने नहीं भी लिए सामने वालों को दिए, वो सब इसके अंदर है। ये काफी लंबा चौड़ा है, आई थिंक इस पे मुझे काफी समय लगेगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि तो इसके अलावा नया कुछ नहीं है, नया नहीं है, सब पुराना ही है। टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो आप क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ मैं, क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, मैं पीपीटी बंद नहीं कर रहा हूँ राजेश भाई, क्योंकि ठीक है हो सर। सकता है मुझे किसी क्लॉज पे ले जाना पड़ जाए। जी सर, जी सर। शशांक गुप्ता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। जी सर। देयर आर मेनी केसेस where demand raised under section 143(1)(a) for disallowances in PF ESI deposit clause under tax audit. Is it mandatory to enter details here, even if knowing that assessee had deposited after due dates, or can we avoid the same? सर ये कॉल आपको लेनी है। मैंने बताया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉल असेसी के फेवर में लेने से पहले 100 बार सोच ले। अकॉर्डिंग टू मी, हमारा काम डिसअलाउंसेस कैलकुलेट नहीं करना है, हमारा Reporting है। काम सिर्फ रिपोर्टिंग का है। रिपोर्ट करिए। अगर आप कॉल ले रहे हैं, देन बी रेडी फॉर सम consequences ऑन यू ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जी सर। अरुण कुमार जी इवन पूछ रहे हैं। इवन सॉरी राजेश भाई, प्लीज इवन प्लीज। सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाए कि डिसअलाउंस नहीं है, तब भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। आई एम हार्श ऑन इट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं, सर इन पॉइंट 27A ऑफ फॉर्म 3CD related to central value added tax input, हाँ जी do we have to give information about GST input? सर, अगर आप नहीं देना चाहें, क्योंकि वो लॉ सब्स्टिट्यूट हो गया है, अगर आप नहीं देना चाहें, एक मिनट में आपको 27A पे लेता हूँ, तो आप वहां पे डिस्क्लोजर दे दें कि इनपुट में जो है कोई गाइडेंस नहीं है, और इनपुट में जो है जीएसटी का है 7A। देखिए सर, ये सिर्फ जो है आपको जीएसटी के बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड क्रेडिट तक तो ठीक था। अभी इनपुट क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो ये इसकी यूटिलिटी में लेके जाता हूं। यूटिलिटी के अंदर आपके अंदर वो क्या कहता है कि ये आपको डिटेल देनी है। अब आप इनपुट में नहीं है, तो जीएसटी वाली नहीं देना चाहें तो आप वहां पे ऑब्जर्वेशन में दे दीजिए कि सैनवेट है ही नहीं, अब खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ जी सर। वर्षा गोयल जी पूछ रही हैं, जी। if there is a loss in future and option business and हम्म। turnover is less than 1 crore, then tax audit is applicable? हाँ जी, आप तो क्लियर कर दें। जी। राकेश भार्गव जी पूछ रहे हैं, हाउ टू रिपोर्ट डिफरेंस इन 26 years and pay pending And due to, how to report difference in 26 years due to the fact that some clients deducted TDS of the previous year in current year. The reconciliation statement is with us. सर, अगर मैं इसको कहना चाहूं तो ये ट्रू एंड फेयर से रिलेटेड है, तो आप वहां पे एनेक्चर लगा दें ट्रू एंड फेयर में कि ये 26 एयर्स का रिकंसिलेशन है, क्योंकि आने वाले एक आध साल में ये जो है वो होने वाली है।
XBRL में टैक्स ऑडिट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मनोज जी पूछ रहे हैं वेदर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स which has not been credited to P&L and directly credited to fixed assets account should report in clause 16 or not? 16, clause number 16. कंपनी है या इंडिविजुअल एसएससी है, मतलब पार्टनरशिप है, क्या है? ये लिखा नहीं भाई साहब इन्होंने। अच्छा कोई बात नहीं, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ। हाँ प्रिज्यूम कर लो। क्लॉज नंबर 16, 16। ठीक है सर, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? P&L में नहीं क्रेडिट करी, कैपिटल अकाउंट में ले गया, उसके ऊपर कोई आपको इनकम अगर अराइज हुई तो आपको पूछना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इसका आपका डायरेक्ट रिलेशन इस वाली डेप्रिसिएशन चार्ट से भी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ट मुझे सर्टिफाई करके देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अगर वो क्रेडिट प्रोप्राइटरी है, अपने कैपिटल अकाउंट में ले रहा है, इंडिविजुअल अकाउंट में ले गया, आपने इंडिविजुअल उसका सेविंग बैंक ऑडिट नहीं किया, तो आप उसका डिस्क्लोजर दें। अदरवाइज ये 16 में भी आएगा और आपका जो है डेप्रिसिएशन वाले में भी आएगा, जो ये मैंने आपको बताया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में भी सर, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश भार्गव जी पूछ रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल इन प्रीवियस ईयर also on plant and machinery. Is it required to quote in different column? Depreciation, additional depreciation. एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी रिपोर्टिंग आपको नहीं बताई गई है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको देना है। तो आपको जब जो यूटिलिटी कहेगी उसके अंदर कोई है ही नहीं, तो आपको क्या करेंगे? तो आपको एक कहे, अगर हम और ज्यादा डिस्क्लोजर देना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि आप अपने नोट्स में क्लॉज नंबर 18 से रिलेटेड बता दें कि इसका ओरिजिनल इतना है और एडिशनल इतना है, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डालना है और अमाउंट डालना है, नथिंग एल्स इज टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश कोचर जी पूछ रहे हैं इन क्लॉज 20B the actual amount paid should be filled as sum received from employee only or from employee as well as employer contribution also? 20B 20B detail of contribution received from employees for various sum as referred in 36(1)(a) 5A। सर एक्चुअली क्या है, अब मैं छोटा सा 1 मिनट लूंगा। जी मैंने 10,000 एक एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, उस पे 12.5% मैंने पीएफ दिया, ये इसको कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब इस 12.5% के साथ 10% एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया और वो आपको एज ए डीमिंग इनकम, गुरुजी ने बहुत अच्छा समझाया था डीमिंग इनकम में, यूट्यूब पे पढ़ा है आप देख लें, कि वो आपकी इनकम बन गई, वो कंट्रीब्यूशन आपकी इनकम है। तो आपको वो जो सम रिसीव डीमिंग है उसकी ड्यू डेट और एक्चुअल डेट देनी है, इसलिए आपको यहां रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के लिए वो जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इम्प्लॉय का जो पैसा है वो इम्प्लॉयर की जगह वो डायरेक्टली जो है पीएफ के अकाउंट में जा रहा है, तो वहां आपको ये रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नहीं आया है, ये सीधा वहां गया है, क्योंकि यहाँ आप पीएफ के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो कुछ तो अमाउंट होगा, तो वो अगर नील हो जाता है तो ये देखना, इन्होंने अभी कोरोना काल के लेके तो 6-7 महीने के आएंगे, बाद के 3 महीने के नहीं आएंगे, तो वो आपको 3-4 महीने का जो भी पीरियड है वो आपको नोट देना है। बट यहाँ पे वो अमाउंट डीमिंग इनकम है 36(1)(b)(a) के अंदर, हमको उसको देना है। इस अलाउंस से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो जाने एसएससी।
नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं, वेदर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी और एनी अदर स्टेट ड्यूज बी ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट? इंटरेस्ट ऑन देखिए डिलेड सर, पेमेंट, इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट पे कभी भी पेनल्टी नहीं है, क्योंकि जब आप रेलेवेंट देंगे सेक्शन, अगर वहां ये कहते हैं कि आपने ये डिफॉल्ट किया और आपकी पेनल्टी कैलकुलेट ऐसे की जाएगी, तो हो सकता है वो इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ है। लेकिन जहां पे कंपनसेटरी पेमेंट है, लॉ को पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी पेनल्टी नहीं होती है, तो इसलिए इसको देख। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस इज पेनल्टी और नॉट? नहीं, नहीं। नहीं है। रेलन साहब पूछ रहे हैं, सर व्हाट अबाउट डिले इन पीएफ एंड ईएसआई, इज इट अलाउड एज एक्सपेंसेस और इट इज टू बी डिसअलाउड इफ इट इज लेट पेमेंट? सर, अगर एम्प्लॉयर का है ड्यू डेट से पहले दे दिया, रिटर्न फाइल करने से पहले, तो अलाउड है। एम्प्लॉय का अलाउड नहीं है। कानून ये कह रहा है, इनकम टैक्स वाले हम कह रहे हैं अलाउड है, तो उसके लिए तो लड़ाई लड़ो। जी सर, जी सर। रमेश आहूजा जी पूछ रहे हैं, हाउ the turnover in case of business of derivative of securities may be determined. The turnover in case of voluminous business cannot be calculated and verified with accuracy. Please, how to proceed? तो सर बात ये है, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट इसमें क्लियर कट बोलता है कि टोटल ऑफ ऑल अनफेवरेबल एंड फेवरेबल इज टू बी सी। डेरिवेटिव पे इसका क्लियर कट है। डिलीवरी के ऊपर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी परचेज सेल दोनों होगी। डेरिवेटिव के अंदर आपका प्रीमियम अगर दे रहे हैं या ले रहे हैं, और जो नेट आपका फाइनली होगा, एम टू एम नहीं लेना है काउंटिंग के। नेक्स्ट चलें सर। बिल्कुल सर। अनुभव जी पूछ रहे हैं, अनुभव गर्ग जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी पेड फॉर 18-19 पेड इन 19-20, मतलब नेक्स्ट ईयर में पे किया। इफ द सेम इज पेड आफ्टर 19-20 but before ITR filing 19-20, whether it will be reported in tax audit clause 26? इस साल का अगले साल में पे किया है, लेकिन बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का है शेयर, उसमें भी दो होते हैं। एम्प्लॉयर। हाँ, तो आपको 26 के अंदर 1 सेकंड में लेके जाता हूँ। हाँ, इसीलिए बंद नहीं की थी सर मैंने। नहीं सर, अच्छा किया सर। मैं आपको बता दूं, एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपके माध्यम से जी। गुरुजी गिरीश आहूजा जी ने ना हमें टाइम दे दिया है। अभी ये डेरिवेटिव वाली बात चल रही थी। 12 तारीख को गुरुजी का जन्माष्टमी के दिन विशेष सेशन है हमारे यहाँ, सुबह 11:30 बजे, जो कि शेयर ट्रांजेक्शन पे वो बोलेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेरिवेटिव, एफ&ओ, ऑल दिस, टैक्सेशन ऑफ शेयर ट्रांजेक्शन। नोट कर लें सारे। और शायद कैरी फॉरवर्ड भी ले लें। हाँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं लें, उसके लिए अलग डेट लेंगे सर। अच्छा। मुझे मरवाओगे, मेरे टॉपिक कम होते जा रहे हैं। मेरा एवरी फ्राइडे बुक है उनके साथ सर। सर मैं आपके टॉपिक नहीं ले रहा, मैं आपके टॉपिक आपके यहाँ देख रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए बचेगा तब ना। क्या आप दोबारा करा देना, गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। ठीक है सर। was incurred in the previous year and was paid on before due date, not paid before, ये तो पिछले साल दिया होगा आपने। ठीक है जी। अब इसमें एक और रिपोर्टिंग थी, यहाँ है, यहाँ देना है जो पिछले साल आपको अलाउ नहीं हुआ और आपने इस साल दिया है, उसको यहाँ देना है। यहाँ देना 26 कैपिटल ए छोटा ए। और अगर आपने इस साल भी नहीं दिया, गुंडागर्दी करी, तो यहाँ देना है बी में। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मनोज जी पूछ रहे हैं। सर क्वेश्चन अभी 17 हमारे पास है पेंडिंग, थोड़ा सा फास्ट चलें। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं, इन क्लॉज 29A any amount forfeited which is appearing in business account will be reported, or it includes any amount forfeited or individual capacity which is not appearing in audited financial statement? सर इसमें आपको ऑडिट के टाइम पे
वहाँ क्वालिफिकेशन ऊपर देनी है कि आपने उनके पर्सनल अकाउंट ऑडिट नहीं करे। ठीक है सर। कमल कुमार खेतान जी पूछ रहे हैं, देयर इज टर्नओवर ऑफ ₹80 लाख इन शेयर बट ही ये हैज गुरुजी से लॉस। पूछना। हाँ, ये गुरुजी से पूछ लेंगे 12 तारीख को 11:30 बजे सुबह। निशांत कुमार, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म 61 रिपोर्टिंग इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? देखो सर, इसके अंदर दिया हुआ है, उसको मैं नहीं ले पाऊंगा। आपका रिपोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर पूरा, एक एक सेक्शन दिया हुआ है, कौन कौन से 114 के वो हैं, उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। हमें सिर्फ रिपोर्टिंग देनी है और हमको बताना है कि क्या क्या अमाउंट है। वो डिस्क्लोजर है सर, फुल डिस्क्लोजर है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश आहूजा जी पूछ रहे हैं, वेदर एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रीटेड एज लोन डिपॉजिट एंड रिपोर्टेड इन 3CD? तो क्या मतलब है, जब फोरफीट हो जाएगा तो हो जाएगा। लोन डिपॉजिट क्यों लोगे उसको? लोन हाँ, डिपॉजिट में तो आएगा ही नहीं, आपको एडवांस। एडवांस है, वो उसके लिए 269 SS वाले को अपने को ध्यान से देना पड़ेगा। अगर एडवांस है आपका 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो ठीक है। अगर मान लीजिए वो आपने 3 साल से ले रखा है तो फिर वो लोन की नेचर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिया जी पूछ रहे हैं, इफ एन एसएससी रिसीव्ड आत्माराम जी, एन। AR हाँ जी, सरिया, नमस्कार कर आत्माराम दो जी, उधर मेरी तरफ से। नमस्कार प्रभु जी। If an assessee received an amount in personal account as advance for property and not informed the auditors, what will be the auditor? कुछ नहीं है फिर तो liability ऑलरेडी auditors बता की। दिया सर, लेकिन आपको क्वालिफाई करनी है ऑब्जर्वेशन में कि आपने उसके पर्सनल अकाउंट नहीं चेक करे हैं, एंड एज सच यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष गुप्ता जी, द न्यू एम्प्लॉयर पेड नोटिस पीरियड सैलरी टू द फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ एन एम्प्लॉय। The new employer has shown the notice period salary of 2 months as salary, though not received by the employee, but showing in 26 years. If included as salary income, it will amount to double taxation. For the amount not received by employee, how to deal? ये सर इनको ऑफलाइन बोलना, ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। पुनीत सिंह सहगल जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, डू वी हैव टू मेंशन जीएसटी पेबल एज ऑन 31 मार्च 2020 अंडर सेक्शन 43B related clause? यस सर, Yes sir. इफ इट इज नॉट पेड विद इन दी ड्यू डेट। रत्नेश महाजन जी पूछ रहे हैं, सर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, whether these amount are to be taken for calculating 5% for the purpose of 5 crore tax limit? अगर आपका अपना ही पैसा है, खुद ही के बैंक से निकाला हुआ है, तो वो अमाउंट नहीं आएगा। वसंत कुंज वाले है ना रजनी ना ना जी? ना, रत्नेश महाजन जी तो हमारे बराबर वाले हैं, अच्छा, पड़ोसी। बराबर वाले। तो अपने ही विड्रॉल को नहीं लेना है। इन द नेचर ऑफ कैपिटल और लोन है, दीज आर नॉट लोन एंड कैपिटल। 5 करोड़ के लिए कह रहे हैं ना? जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, ये पुनीत जी का दो बार आ गया क्वेश्चन। दीपिका जी पूछ रही है, एनी इंटरेस्ट पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज डिसअलाउएबल, ये प्लीज भी क्लैरिफाई। जनरल क्वेश्चन है, इस पे केस लॉ आ गया, ये अलाउबल है, लेकिन यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं है। एक मिनट, केस लॉ आ गया, मुझे नहीं अभी हैंड नहीं याद है। राकेश गुप्ता जी की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने दिया हुआ है। मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, वो फिर 12 तारीख को पूछिए मनोज हाँ गुप्ता जी, जी, 12 जी। सुबह 11:30 बजे। हाँ जी। डिस्पोज ऑफ। महावीर जी पूछ रहे हैं, कैन बी ऑडिट पार्टली बुक्स और सम मिसिंग रिकॉर्ड्स विद दे क्वालिफिकेशन दिया, नोटिस? ऑलरेडी दे दिया, दे दिया। हाँ, तो रिप्लाई दे दिया आपने। मयंक अग्रवाल जी, आई हैव ए केस वेयर एसएससी इज ए पार्टनरशिप फर्म बट their advocate by mistakenly has applied GST in the name of one of the partner. Please guide what to do in case. सर मैं क्या बताऊंगा इसमें, तो ये तो टेक्निकल इशू है। पार्टनर ये के अप्लाई कर दिया। जीएसटी वाले से पूछो सर। हाँ मयंक जी, ये बेटर है। जीएसटी का भी हमारा वेबिनार है, और 13 तारीख को है वेबिनार जीएसटी पर, आप उससे पूछ लीजिएगा। संजय जी, एक क्वेश्चन मेरा पूछना है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी। सर। ये जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में हमारे से ये पूछते हैं कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हमने टैक्स काटा है तो
हो सकता है कुछ अमाउंट ऐसे हो जिन पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बनता ही ना हो, लेकिन वहां वो सेक्शन पूछती है कि टोटल अमाउंट उस सेक्शन में कितना था, उस सेक्शन के मुताबिक कितने पे रिकंसिलिएशन टैक्स रखना है। कट, कितने पे टैक्स काटना था, कितने पे कटा, किस रेट से कटा और कितना जमा हुआ। जी तो छोटी कंसर्न के लिए ये चीज तो निकालनी आसान है हाँ जी। कि भाई 194C का टोटल अमाउंट कितना बनता था, लेकिन बड़ी कंसर्न के लिए तो इट इज ए अपहिल टास्क। कोई कहीं जा रहा है अमाउंट, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? सर जी बात यह है कि बड़ी कंसर्न वाला पैसे ज्यादा लो, वरना क्वालिफाई करो कि डी न्यूज ने, खत्म हो गया बात। मतलब देनी हर हालत में ही पड़ेगी उसके अंदर। देखो सर, वो तो यही चाहते हैं कि सीए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले। क्योंकि अदरवाइज मैंने काफी रिपोर्टें देखी हैं, बड़े बड़े ऑडिटर्स की रिपोर्टें पढ़ी हैं, उसमें वो सिस्टम के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं वाली आप इंफॉर्मेशन। आप जो है ना, अगर उन्होंने सैप लगाया हुआ है जी या कोई चीज लगाई हुई है जी तो आप उस पर रिलाई करना चाहें तो कर ले, वरना छोड़ें। जी ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन है, विद्या जी पूछ रही हैं, आईटीसी रिवर्स एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन बी बुक्ड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 37 में अलाउड है। ठीक है सर। एनी एक्सपेंडिचर विच इज फॉर द बिजनेस इज अलाउएबल, बट डिपेंड करेगा सेम ईयर में कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर है। अगर पिछले सालों के रिलेटेड है तो वो आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मैं पूछ ही लेता हूँ। शशांक जी पूछ रहे हैं, वेयर टू शो डायरेक्टर सिटिंग फीस इफ टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J इज टू बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम। देखो सर, अगर वो कई कंपनियों में 30-40 कंपनियों में डायरेक्टर है तब तो उसका बिजनेस हो गया। अब ये कहेंगे उसमें मैं डिडक्शन भी लूंगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है वैसे तो। लेकिन नेक्स्ट अगर मान लो क्वेश्चन, कई जगह, सॉरी, कई जगह डायरेक्टर है तो बिजनेस भी हो सकता है उसका, प्रोफेशन। रमेश रमेश आहूजा जी पूछ रहे हैं, इन रिलेशन टू माय क्वेरी ऑन एडवांस ऑफ प्रॉपर्टी प्लीज नोट 269SS speaks of specified sum where there is a reference to that। सर 269 के अंदर एडवांस जो है उसके लिए बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो कंफ्यूजन है आपको। अगर चेक से आया कुछ है तो रिपोर्ट कर दो, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? It is better to report। हाँ Now sir there is no question left and क्या thank बात है, you। कैशियर का कैश टैली। यस सर। और मैं बता दूं सर, आजकल वॉइस ऑफ सीए के अंडर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, सो जो भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट टू राजीव कोहली जी फॉर ए वोट ऑफ थैंक्स सर। कोहली साहब, ओवर टू यू। हाँ जी, Sanjay, thank you for such a nice deliberation, such a exhaustive deliberation and a very exhaustive PPT, 370 slides, and you've taken all the questions, made all the clarification, all the issues, basically from the definition की 5 crore अंदर क्या लगना है, क्या नहीं लगना, methodically whether it's going to be by turnover, whether it's going to be by payments, and then all the changes in the new clauses and the deferment is there for the 2 clauses for GAR and others. And sir, thank you for this, because basically the liability on the auditor is becoming more and more, and with the more and more IT and they're getting information of various government departments, will become very difficult. If the PF side, if the ESI sites, if the other sites are linked, then it becomes very, very difficult. Sir, thank you very much from core of our hearts for this nice day. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। अनम्यूट कर लो कोहली साहब, अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए आप। Thank you, sir. Thank you, Sanjay ji. थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर, यू, थैंक यू बॉस। शब्बा वंस अगेन खैर, राधे गुड राधे, नाइट, स्टे राधे सेफ, राधे। स्टे सेफ,